شہر کے بلدیاتی اداروں نے لوکل گورنمنٹ بورڈ سندھ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ جلوس و مجالس کے مقامات اور گزرگاہوں کے اطراف سولر لائٹس نہیں لگائی جا سکیں۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ 6 اگست کو محکمہ لوکل گورنمنٹ بورڈ سندھ نے تحریری حکم نامہ جاری کیا تھا کہ عزاداران کو سہولیات کی فراہمی اور روشنی کے انتظامات کے لیے سولر پینل لائٹس لگائی جائیں، مگر شہر کے 7 اضلاع میں اس حکم نامے پر عمل نہ ہو سکا۔ یہاں مجالس مستقل ہو رہی ہیں، اس طرح کی کوئی امپلیمنٹیشن اس طرح سے نہیں کی بلدیاتی اداروں نے۔ میٹنگز میں ضرور یہ بات ہوئی ہے، لیکن وہ صرف باتوں کی حد تک چیزیں رہی ہیں اور اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہمیں یہاں فزیکلی نظر نہیں آ رہا ہے۔ کراچی کے دیگر مقامات کی طرح ایام عاشورہ کے اہم مرکز نشتر پارک میں بھی ان ہدایات کو نظر انداز کیا گیا۔ منتظمین کہتے ہیں محرم الحرام کے انتظامات کے حوالے سے کی جانے والی میٹنگز میں ایسے دعوے تو کیے گئے مگر زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ انوکھی بات نہیں ہے سندھ گورنمنٹ سے جو اناؤنسمنٹ ہوتے ہیں آئے دن۔ اس شہر کے میں پیدا ہوا ہوں اور ہر گلیوں میں بھی جاتا ہوں اور ہر روڈوں میں پھر رہتا ہوں، مجھے تو ایسا کوئی کچھ سسٹم نظر ہی نہیں آیا ہے۔ سولر لائٹس کے استعمال سے بجلی اور برقی رو استعمال کرنے کی مد میں آنے والے اخراجات میں نمایاں کمی ہو سکتی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محکمہ بلدیات ان احکامات پر عمل نہ کرنے پر افسران کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لاتی ہے۔ کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ رضوان احمد۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس، ڈی آئی جی ایسٹ ثاقب اسماعیل اور دیگر متعلقہ افسران بھی ایڈمنسٹریٹر کراچی کے ہمراہ تھے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے محمد کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد کامران، بتائے گا ان دوروں کے حوالے سے۔ جی بالکل، ایڈمنسٹریٹر کراچی مشیر قانون و ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب نے محرم الحرام کے حوالے سے جو سیکورٹی انتظامات ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے، جس میں چورنگی سے خرادر تک محرم الحرام کے 9ویں اور 10ویں محرم کے جو روڈ کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس، ڈی آئی جی ایسٹ ثاقب اسماعیل، ڈی آئی جی ساؤتھ جاوید اکبر ریاض، ڈی آئی جی ٹریفک اقبال دارا اور دیگر متعلقہ جو افسران تھے وہ بھی اس موقع پر ہمراہ تھے۔ اس کے بعد بیرسٹر مرتضی وہاب جو ہیں نشتر پارک پہنچے، جہاں پہ جو ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں انہوں نے محرم الحرام کی سیکورٹی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے نمائش چورنگی، مزار قائد اور اس سے متصل جو علاقے ہیں ان کا بھی دورہ کیا، جس میں انہوں نے تمام تر جو سیکورٹی انتظامات ہیں اس کا خود جائزہ لیا۔ اس کے بعد ایڈمنسٹریٹر کراچی نشتر پارک کے دورے کے دوران منتظمین جو ہیں ان سے ملاقات بھی کی اور محرم الحرام کے حوالے سے حکام کو جو سیکورٹی جو ہے اس کے حوالے سے مزید سخت کرنے کی ہدایت دی ہیں۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے ایم اے جناح روڈ کے جو اطراف سیکورٹی ہے اس کا بھی جائزہ لیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد کامران، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ صوبائی وزیر کچی آبادی لیاقت اسکانی نے محرم الحرام کے دوران ضلع کیماڑی میں صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامات کی بروقت تکمیل کی ہدایت کر دی ہے۔ صوبائی وزیر لیاقت اسکانی نے معاون خصوصی آصف خان اور میونسپل کمشنر آفاق سعید کے ہمراہ ضلع کیماڑی میں مختلف امام بارگاہوں کے اطراف سڑکوں کی مرمت، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب، صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر نے جلوس کی گزرگاہوں پر سڑک کی مخدوش صورتحال پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فوری مرمت کی ہدایت کی۔ وزیر کچی آبادی نے افسران کو ہدایت کی کہ علاقائی انجمنوں اور امام بارگاہوں کے منتظمین کی مشاورت سے ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر غربی شہریار میمن نے بلدیاتی افسران کو ہدایت کی ہے کہ جلوس اور عزاداروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے۔ ضلع غربی کی مختلف امام بارگاہوں، مساجد کے منتظمین اور مختلف تنظیموں کے عہدیداروں نے ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر شہریار میمن سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر شہریار میمن سے جلوس کی گزرگاہوں، امام بارگاہوں سمیت مختلف مقامات پر سڑکوں، گلیوں کی کارپینٹنگ، پیچ ورک، صفائی ستھرائی سمیت اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب کے حوالے سے وفد کو آگاہ کیا گیا۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی جہاں شہر بھر کے پکوان سینٹرز کا کاروبار چمک اٹھتا ہے تو وہیں شیر مال کی فروخت میں بھی نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے۔ محرم الحرام کے دوران شہر بھر میں نذر و نیاز کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے، جس میں انواع و اقسام کے کھانوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کراچی کے بیشتر پکوان سینٹرز پر عام دنوں کے مقابلے 8، 9 اور 10 محرم کو زائد آرڈرز کے باعث ڈیمانڈ کو پورا کرنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ پکوان سینٹر کے مالک کا کہنا ہے کہ انہیں رش کے باعث گاہکوں سے مزید آرڈر لینے سے معذرت کرنی پڑتی ہے۔ محرم الحرام کے سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، حلیم کی، بریانی کی، قورمے کی، اور ہم نے تو اس دفعہ آرڈر بھی لینا 9-10 تاریخیں بند کر دیے ہیں کیونکہ رش بہت زیادہ لگ گیا ہے۔
मुहर्रम के दौरान तंदूरों का कारोबार भी उरूज पर पहुंच जाता है। वाटर पंप पर शीरमाल हाउस के मालिक सलीम भी कारोबार बढ़ने से खुश दिखाई दिए। इन दिनों के अंदर चूँकि नज़र न्याज का काम काफ़ी ज़्यादा होता है तो उसमें हमें खसूसी तौर पर रियायत करनी पड़ती है, तो कुछ ना कुछ हम उसमें अच्छी खासी रियायत देते हैं। तहारत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, सफाई सुथराई का, और आम दिनों का काम है माशाल्लाह काम बहुत ज़्यादा होता है, ख़ासकर 8, 9, 10 मुहर्रम को। अहले बैत से मोहब्बत और अकीदत के इजहार के लिए जहाँ शहर भर के बेशतर मकामात पर न्याज़ हुसैन का खास एहतमाम किया जाता है, तो वहीं पकवान सेंटर्स और तंदूरों की जानिब से भी बड़े ऑर्डर्स पर खास रियायत दी जाती है। कैमरामैन कयूम और साथी रिपोर्टर बसीम इफ्तिखार के हमरा सलाल बड़ा। कराची में निगलेरिया का एक और केस सामने आ गया। नॉर्थ कराची के रिहायशी ज़ीशान में निगलेरिया की तस्दीक। 38 साल ज़ीशान निजी अस्पताल मुंतकिल। रवां साल सिंध में 7 मरीज निगलेरिया का शिकार हो चुके हैं। शहर कैद के बासियों पर निगलेरिया नामी जानलेवा बीमारी फिर हमलावर। ये खामोश कातिल कितना खतरनाक है और इसकी अलामात और एहतियाती तदाबीर क्या हैं, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। माखोर जरसूमा निगलेरिया एक बार फिर मुतहर्रिक। जानलेवा बीमारी निगलेरिया एक बार फिर इंसानी जानें लेने लगी। निगलेरिया का जरसूमा शदीद गर्म पानी और साफ पानी में नशोनुमा पाता है। ये नाक मुंह के जरिए जिस्म में दाखिल होकर दिमाग के खलियों को खाना शुरू कर देता है। ये खामोश कातिल 2 से 4 रोज में इंसान को मौत के मुंह में पहुंचा देता है। निगलेरिया अमूमन स्विमिंग पूल्स, तालाब और टैंकों के क्लोरीन में कम मिकदार होने पर पाया जाता है। निगलेरिया की अलामतें 7 दिन में जाहिर होती हैं। गर्दन तोड़ बुखार, सर में तेज दर्द, उल्टियाँ, मतली, गर्दन अकड़ जाना, जिस्म में झटके लगना भी इसकी वाज़ेह अलामत हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पानी की टैंकों को साल में कम से कम 2 बार साफ किया जाए। क्लोरीन की गोलियों का इस्तेमाल भी किया जाए। पीने और वजू के लिए पानी को उबाल कर इस्तेमाल किया जाए ताकि इस मौलिक मर्ज से बचा जा सके। आपको शक है कि ये पानी में क्लोरीन हुकूमत नहीं मिला रही है, तो आप क्लोरीन के टैबलेट्स बाजार में बिकते हैं, तो उसको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही साथ ब्लीच पाउडर जो हम कपड़े धोने का काम आता है, उसको भी पानी में डाल दिया जाता है। उसको भी पानी में थोड़ा सा उसको मिला के पेस्ट बना के और उसको फिर पानी में डाल दें तो वो भी इस कीड़े को मार सकता है। ओगरा ने रात गए गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया। मुल्क भर में कीमतें 14% तक बढ़ा दी गई हैं। सुई सर्दन के लिए गैस की कीमतों में 7% तक इजाफा होगा। इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। गरीब पर रिलीफ के दरवाजे बंद। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया 50 रुपए तक महंगी। दर्जा अव्वल घी और तेल की कीमतों में 34 रुपए लीटर तक इजाफा। चाय की पत्ती 40 रुपए महंगी। साबुन, सर्फ और माचिस के दाम भी बढ़ गए। मिक्स अचार 30, केचप 10 रुपए किलो महंगी मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने मुख्तलिफ ब्रांड के चाय, घी, बाथ सोप, माचिस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। चाय की पत्ती के 950 ग्राम पैकेट की कीमत में 40 रुपए इजाफा किया गया है। ऑलिव ऑयल की कीमत में 51 रुपए फी लीटर, घी 1 किलो के पैकेट पर 31 रुपए, कुकिंग ऑयल की कीमत में 34 रुपए, माचिस के पैकेट पर 10 रुपए, ब्रांड्स डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट पर 50 रुपए, 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक की कीमत में 2 रुपए, टॉयलेट सोप की कीमत में 3 रुपए, मिक्स अचार की कीमत में 30 रुपए फी किलो, जबकि केचप की कीमत में 10 रुपए इजाफा किया गया है। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ाने पर शहरी फट पड़े। शहरियों का कहना है कि गरीब का जीना दूभर हो गया है। हर आए दिन के साथ महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। गरीब आदमी अगर यूटिलिटी स्टोर पे भी जाता है तो उसको इतना कोई सस्ता जो है सौदा नहीं मिलता जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। यूटिलिटी स्टोर पे भी बहुत महंगी चीज़ें हैं, वो मसलन गरीब के पहुंच से दूर हो गई है। महंगाई इतनी हो गई, आमदन कम है और खर्चे ज़्यादा हैं। इतनी महंगाई हो गई है, सारा दिन रिक्शा चलाते हैं, सवारी हमें किराया नहीं देती, इधर से महंगाई हो गई है। वो किराया वैसे सवारी वही 100 रुपये 150 रुपये पे खड़ी है। महंगाई इतनी है कि हर बंदे की जो है ना कमर टूट गई है। बहुत ही मुश्किल से गुजारा है हर बंदे का। जो यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ दे रहे थे वो थोड़ी दे दें। वो भी इतनी महंगाई है कि लाइन लगी हुई है। 2-2 घंटे के बाद एक थैली आटे की देते हैं वो। अगर चीनी लो तो तब, चीनी नहीं लोगे तो वो भी नहीं देंगे। शहरियों का कहना था कि बेरोजगारी और हर रोज बढ़ती महंगाई ने परेशान कर रखा है। अगर हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल ना की तो गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो जाएगा। पीटीआई हुकूमत के 3 साल महंगाई का सुनामी ले आए। चीनी, आटा, घी, दालें और गोश्त सब कुछ महंगा हो गया। कौन सी चीज़ कितनी महंगी हुई,
इस रिपोर्ट में जानिए। पीटीआई हुकूमत के 3 साल अवाम पर महंगाई के लिहाज से काफी भारी रहे। इदारा शुमारियात के मुताबिक 3 साल में चीनी औसतन 50 रुपए फी किलो महंगी हो गई। अगस्त 2018 में चीनी की औसत कीमत 56 रुपए फी किलो थी, जो अब औसतन 106 रुपए फी किलो हो चुकी है। यही नहीं, आटे का 20 किलो का थैला भी औसत 362 रुपए महंगा हो गया। मौजूदा हुकूमत के दौर में घी की औसत कीमत में 179 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। इस अरसे में दाल माश 96 रुपए फी किलो, दाल मसूर 44 रुपए, दाल मूंग 69 रुपए और दाल चना औसतन 30 रुपए फी किलो महंगी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक 3 साल में बकरे का गोश्त औसतन 337 रुपए और गाय का गोश्त 170 रुपए, जबकि मुर्गी का गोश्त 38 रुपए फी किलो महंगा हो गया। ताज़ा दूध की कीमत में 26 रुपए फी लीटर और दही की कीमत में 27 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। 3 साल में लहसुन 122 रुपए, टमाटर 13 रुपए और प्याज 2 रुपए किलो महंगे हुए। चावल की कीमत में 19 रुपए, गुड़ 55 रुपए फी किलो, जबकि अंडे की कीमत में 59 रुपए फी दर्जन इजाफा हुआ। पीटीआई हुकूमत में गैस और बिजली की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल रहीं और बिजली के फी यूनिट चार्जेस 2 रुपए से 5 रुपए 95 पैसे हो गए, जबकि एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 530 रुपए महंगा हो गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अफगान सूरत हाल पर पार्लियामान को एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं अफगानिस्तान में ऐसा निज़ाम चाहते हैं जिसमें सबकी नुमाइंदगी हो। हुकूमत सीपैक मंसूबों को मुकम्मल सिक्योरिटी की फ्राहमी के साथ साथ अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे करें। उन्होंने दहशत गर्दों को भी वाज़ेह पैगाम दिया कि उन्हें पाकिस्तान में उनके लिए कोई जगह नहीं। तफसीलात कराची से मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट में। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और शीरी रहमान की उम्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि अफगान सूरत हाल के मुतालिक हुकूमत को पहले मशवरा दे चुके हैं। ऐसा निज़ाम चाहते हैं जिसमें सबकी नुमाइंदगी हो। पीटीआई हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है। अफगान सूरत हाल का असर खित्ते पर भी पड़ सकता है। अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव सेटअप आया जाए जिसमें पूरा अफगानिस्तान का नुमाइंदगी हो, सारे के सारे एथनिक ग्रुप्स का नुमाइंदगी हो, और हम समझते हैं कि अगर एक इंक्लूसिव पीस होगा तो वो रीजन में स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत पर जोर दिया कि सीपैक मंसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाएं, पाकिस्तानी शहरियों और अफवाज को निशाना बनाने वाले दहशत गर्दों को वाज़ेह पैगाम दें। 10 कोयटा और कराची में वाक़यात हुए हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद ना किया तो मजीद वाक़या रोनुमा हो सकते हैं। नेशनल एक्शन प्लान है, उस पे सॉर्ट ऑफ एवरी कॉमा फुल स्टॉप हर लफ्ज़ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो कि इस वक्त नहीं हो रहा है मगर होना चाहिए, ताकि हम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला कर सकते हैं। और साथ साथ जो हुकूमत पाकिस्तान है, जो हमारा जमहूरियत है, जो हमारा जमहूरी और निज़ाम का सर्विस डिलीवरी है, उसमें बेहतरी आना पड़े। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात के मुतालबे पर कायम है। सिंध की वज़ारत आला के लिए सिर्फ मुराद अली शाह ही ऑप्शन है। आज भी काम करने को तैयार है और कल भी नेशनल इंटरेस्ट में ज़रूर काम करने को तैयार होंगे। जहाँ तक वज़ीर आला सिंध की बात है, मैंने पहले ये बात को क्लियर किया है कि वज़ीर आला सिंध के लिए मेरे 3 ऑप्शंस हैं, मुराद अली शाह, मुराद अली शाह, मुराद अली शाह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को मशवरा दिया कि मौजूदा सूरत हाल में कौम परस्त क़यादत को भी साथ लेकर चलना होगा। हमें अपने कानूनी, माशी और आइनी वादे को पूरा करना होंगे। मोहम्मद कामरान, सिटी 20।